تو اس سفر حج میں اس لغو کام سے ضرور اعراض کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اس سفر حج میں آپ کو طرح طرح کے ساتھیوں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ آپ کے ساتھیوں میں سے بعض ساتھی ایسے ہوں گے جو سست ہوں گے، جن کو اعمال کا شوق نہیں ہوگا، جو بے فائدہ باتوں میں مجلس آرائیاں کرتے ہوں گے، جو بازاروں کی چیزوں میں تبصرہ کرتے ہوں گے، جو بازاروں میں گھومتے ہوں گے اور چیزیں لاتے ہوں گے۔ ایسے ساتھیوں کے ساتھ اگر آپ کا رہنا سہنا ہوگا تو آپ کا بہت سارا وقت برباد ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے ساتھی کے ساتھ رہنا شروع کریں اعمال کے شوق والا ہو، جو ساتھی زیادہ سے زیادہ طواف کرنے والا ہو، جو ساتھی اللہ کی نعمتوں، اللہ کے نبی کے کمالات اور ان کے خصوصیات کا تذکرہ کرنے والا ہو۔ یعنی اعمال کا شوق رکھنے والا ساتھی اگر آپ کا ساتھ ہوا تو خود آپ کو بھی اعمال کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ رہ کر کے بہت سارے وہ اعمال آپ انجام دے سکیں گے جو شاید اکیلے پن میں آپ انجام نہیں دے سکیں گے۔ لہٰذا اچھے ساتھی کے ساتھ رہنا سہنا بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا بمقابلے ایسے ساتھی کے ساتھ رہنے سہنے جو اعمال کا شوقین نہ ہو، اس کی وہ بدشوقی کے اثرات خود آپ پر بھی آئیں گے۔ چاچے کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو اچھے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو بہت اعمال انجام دیتے ہیں، اور اگر ان کو کسی ایسے ساتھی کے ساتھ رہنا پڑا جو خود شوقین نہ ہوا تو جو کرنے کا ارادہ تھا وہ کرنے کا ارادہ بھی چھوٹ جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، وہاں کے ماحول سے متاثر نہ ہوں۔ ماحول سے متاثر ہونے کے معنی کیا ہے؟ دائیں بائیں کے افراد دراصل ہمارا ماحول ہوتا ہے۔ اگر دائیں بائیں کے افراد اس مزاج کے ہوں، وہ چیزیں خریدنے والے ہوں، وہاں کے سسٹم پر تبصرے کرنے والے ہوں، کبھی گھر کے متعلق تذکرے کرنے والے ہوں، کبھی یہاں کی سیاست پر بحثیں کرنے والے ہوں، کبھی دنیا کے مسلمانوں پر تبصرہ کرنے والے ہوں، اس ماحول میں جب آپ رہیں گے تو آپ کو بھی وہی مزاج پیدا ہوگا، آپ بھی بے فائدہ باتوں میں لگے رہیں گے، چیزوں پہ تبصرے، خریداری پہ تبصرے، چیزوں کی قیمت، وہاں کے بازاروں کی نوعیت، بازاروں میں کیا کیا چیزیں بک رہی ہیں، کس ملک کے حاجی کیسے ہیں، کس ملک کی شکل و صورت کیسی ہے۔ غرض یہ کہ بے فائدہ مجلسوں کے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ایسے ماحول میں اپنے آپ کو رکھیں جہاں زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہو کس چیز کا، کہ آپ نے کتنے طواف کیے، آپ نے کتنے عمرے کیے، آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، ہم نے کتنی پڑھی۔ یعنی جب ہماری مجلسوں میں اعمال کے کمی اور زیادتی کا تذکرہ ہوگا تو اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اور اگر وہ ہماری مجلسوں میں گھروں کے متعلق، ہر کے وہاں کے انتظامات کے متعلق، وہاں کے پولیس اور وہاں کے قانونوں کے متعلق اور دنیا بھر کے متعلق تبصرے ہوں گے تو وہ ہمارا ماحول وہ ایسا ہی ماحول نہیں ہوگا۔ وہاں کے اس ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں جس ماحول میں اعمال کا کوئی کام تو نہ ہوتا ہو، صرف تبصرہ آرائی ہوتی ہو، اس ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس پورے سفر میں تمام انتظامات اور بہتر سے بہتر انتظامات کے باوجود کہیں نہ کہیں پریشانی ضرور آتی ہے، اور یہ پریشانی کبھی تو ارادی ہوتی ہے، کبھی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اصل چیز اللہ تعالیٰ شانو کبھی بندے کو پریشانی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا دل ٹوٹے اور یہ میری طرف متوجہ ہو۔ خدا نخواستہ اگر کسی بھی قسم کی کہیں کوئی پریشانی آ جائے تو اس وقت اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جہاں آپ دائیں بائیں کے طرح کی تدبیریں کریں گے، سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر کے آنسو بہا کر کے اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعائیں کریں۔ اس سے زیادہ بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کہ آدمی پریشانی میں مبتلا ہو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بجائے وہ دوسروں سے مدد لینے لگے۔ نہیں، اپنی جو بھی پریشانی ہو، جس قسم کی بھی ہو، بس اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر، یعنی مکہ مکرمہ میں پریشانی آئے تو کعبۃ اللہ میں حاضر ہو کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر کے اپنی پریشانی پیش کریں، اور مدینہ طیبہ میں اگر پریشانی پیش آئے تو مسجد نبوی میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنی پریشانی کا حل اللہ کے بارگاہ سے طلب کریں۔ اس سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ میں جہاں طرح طرح کے معاملات کا سامنا آتا ہے، وہاں ایک مشکل صورتحال یہ بھی آتی ہے کہ وہاں دنیا بھر کے مسلمان مرد اور خواتین حج اور طواف کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ان مسلمانوں میں حسین سے حسین ترین لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہاں بعض دفعہ انسان کو بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس وقت وہاں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ بعض دفعہ مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن بار بار اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ تم اللہ کے گھر میں ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے زبان سے کہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنی آنکھوں سے کہیں کہ تم جتنا بھی بد نظری کرو گے، جتنا بھی نامحرم کی طرف دیکھو گے، تمہارے ہاتھ آنے والا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم سزا کے مستحق بنو گے۔ اللہ کے گھر میں رہ کر کے یہ خیانت تمہیں نہ جانے کس عذاب کا مستحق بنا دے گی۔ تو جتنا زیادہ مراقبہ کریں گے، اللہ کا استحضار کریں گے،
जितना ज्यादा ये समझेंगे कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, उतना अपनी निगाहों को बचाने में आसानी होगी। निगाहों की हिफाजत के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि अपना सर ऊपर उठाना ही नहीं चाहिए, हमेशा निगाहें जमीन पर रख करके चलें। तवाफ में भी, मक्का मुकरमा की गलियों में भी, रास्तों में भी, मस्जिद हराम जाते हुए भी, वापसी पर भी निगाह हमेशा पांव पर रखें। और जब आप निगाह पांव पर रखेंगे तो किसी के चेहरे पर निगाह पड़ेगी ही नहीं, और उस तरह से अपनी निगाहों को बचाना आसान होगा। साथ में दुआएं भी करते रहें कि या अल्लाह मैं आपके घर में हाजिर हुआ हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे दिल में बुरे ख्यालात ना आए, मेरे दिमाग में गलत तसव्वुरात ना आए, मेरी निगाहें गलत न देखें, मेरी जुबान से गलत जुमले न निकलें, लेकिन ये मेरी अपनी कोशिश है, तौफीक आप ही की होगी। जब आप मुझे तौफीक अता करेंगे तो मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हो सकूंगा। जितनी दुआएं करेंगे अपनी निगाहों, अपनी जुबान, अपने कानों और अपनी जुबान की हिफाजत के लिए, उतरे अल्लाह ताला शानों की तरफ से मदद आएगी और आप अपने इन आज़ा के गलत इस्तेमाल से अपने आप को बचा सकेंगे। एक ईमान वाले को हर वक्त इस्तेज़ार रहना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे कितनी नेमतें अता की हैं, और उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत, इस्लाम की नेमत, और फिर अब बड़ी नेमत ये अता की है कि मुझे अपने घर में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। जितना इस बात को सोचेंगे कि अल्लाह ने मुझ पर कितना एहसान किया, अपने घर में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई, अब ये मेरा जिस्म कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाए। ये मुराक़बा एहसानी जितना ज्यादा करते रहेंगे, अल्लाह की नेमतों को जितना ज्यादा सोचते रहेंगे, उस सोचने के बाद फिर आप अपने आप को गुनाहों से बचाने में उम्मीद है कि बहुत आसानी से कामयाब हो जाएंगे। मुराक़बा एहसानी बहुत ज्यादा मुफीद होता है इंसान को, एक तो अल्लाह की तरफ अपने आप को मुतवज्जे करने में और गुनाहों से बचने में। बस हर थोड़ी देर के बाद आंखें बंद करें, और आंखें बंद करने के बाद फिर तसव्वुर करें मैं अल्लाह के सामने हूँ, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, बल्कि जुबान से भी कहें मैं इस वक्त अल्लाह के घर में हूँ, अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ, अल्लाह के घर में हाजिर होने का मेरा कस्द है, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, मेरी इस हालत से अल्लाह ताला वाकिफ है, और मेरी एक एक हरकत को भी अल्लाह ताला देख रहे हैं। अगर मेरी हरकत ठीक होगी तो अल्लाह राजी होंगे, खुश होंगे, और अगर मेरी हरकत गलत होगी तो अल्लाह ताला नाराज होंगे, और ये कहते होंगे मैंने अपने बंदे को अपने घर के लिए जाने का रास्ता मुहैया कर दिया, मगर किस तरह से मुझे नाराज कर करके वहां जा रहा है। जितना इस बात को सोचेंगे उतना आप अपने आप को गुनाहों से बचा सकेंगे। इस सफर में अगर खुदा न खास्ता कहीं किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आई तो उस मुश्किल का तस्करा करना और मुसलसल उसको मौज़ूई गुफ्तगू बनाना हरगिज बेहतर नहीं है। बाद दफा हाजी साहिबान को मुश्किलात आती हैं, अब वो उस मुश्किल का तस्करा बार बार अपने कभी एक साथी के साथ, कभी दूसरे साथी के साथ, कभी तीसरे साथी के साथ, कभी मोबाइल पर घर वालों को, ये मुश्किल पेश आने का बार बार तस्करा करना बेफायदा अमल है, इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए खुदा न खास्ता अगर किसी किस्म की मुश्किल पेश आए तो सब्र और आला दर्जे का सब्र यह है कि जुबान पर उसका तस्करा भी ना आए। और जब बंदा जुबान से उसका तस्करा भी नहीं करता है, बर्दाश्त करता है, तो उसको कुरान करीम में कहा गया ये सब्र जमील है। ऐसी मुश्किल जिस मुश्किल में इंसान अपनी जुबान पर भी मुश्किल का तस्करा न करे, ये सब्र जमील है। हाँ, जब मुश्किल पेश आए तो उसका तस्करा अगर करना है तो अल्लाह बारगाह में दुआ की सूरत में तस्करा करें। अपने साथियों को परेशान करना बेहतर नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे हाजी साहिबान जब सफर हज से वापस आते हैं और वहां अगर किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आई हो तो यहाँ आकर तस्करा करते हैं। उस तस्करा करने का फायदा तो कोई नहीं होता, नुकसान उसका ये होता है कि यहाँ उसको सुनने वालों के दिल में वहां का डर बैठ जाता है, और अगर उनमें से किसी का इरादा भी हो हज के लिए निकलने का तो फौरन उन मुश्किलात को सुन करके उसका इरादा कमजोर पड़ जाता है। इसलिए वहां पेश आने वाली किसी भी किस्म की किसी मुश्किल का तस्करा न वहां बेहतर है और न वापस आकर के करना चाहिए। आप जिन खीमों में या मक्का मुकर्रमा मदीना तैयबा की जिन बिल्डिंगों में क़याम पजीर होंगे उनमें जाहिर है दूसरे हाजी साहिबान भी होंगे। कभी उन कमरों में खवातीन भी होती हैं। इस्लामी हल हुक्म तो यह था कि खवातीन अलग कमरों में रहें और मर्द अलग कमरों में रहें, इसलिए कि जब 24 घंटे का रहना सहना हो तो उसमें कभी आदमी लेट जाता है, कभी आराम करता है, कभी बदन पर कपड़ा नहीं रहता है, तो जाहिर है नामहरम औरतों के साथ एक कमरे में रहना किसी तरह भी इस्लामी उसूलों के मुताबिक दुरुस्त नहीं थी। लेकिन चूंकि ये इंतजाम करने वालों के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लिहाजा सबसे बेहतर तो ये है कि जब हम किसी बिल्डिंग में पहुंचे, अगर हमारे साथ मस्तूरात भी हों तो अपने साथ वाले कमरे वालों के साथ ये बात तय कर लें कि साहब हम खवातीन को एक कमरे में रखेंगे और मर्द हजरात दूसरे कमरे में रहेंगे, ताकि उठने बैठने में, लेटने में, खाने पीने में, आराम करने में कोई बेपर्दगी न हो।
हमारी निगाह नामहरम पर न पड़े, नामहरम की निगाह हम पर न पड़े। अगर खुदा न खास्ता ये इंतजाम न हो सका और एक ही कमरे में नामहरम खवातीन के साथ रहना पड़ रहा है, तो फिर दूसरा हल उसका ये है कि दरमियान में पर्दा टांग दें और पर्दा लटका करके एक तरफ खवातीन रहें और दूसरी तरफ मर्द हजरात रहें। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए एक कमरे में रहते हुए नामहरम औरत को के आदमी कहेगा आप मेरी बहन हो, और खातून किसी नामहरम मर्द को कहे कि तुम मेरे भाई हो, और ये लफ्जों में भाई बहन बन करके फिर घंटों घंटों बैठ करके आपस में बातें करते हैं, और फिर एक साथ कभी चलने लगते हैं, हरम जा रहे हैं तो एक साथ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो एक साथ आ रहे हैं। जब शरीयत ने नामहरम करार दे दिया तो हमारी जुबान से किसी को भाई कहने से और जुबान से किसी को बहन कहने से वो भाई बहन नहीं बनते हैं। इस्लाम का हुक्म पर्दे का है, वो हुक्म अभी बरकरार है। इसलिए मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा की बिल्डिंगों में भी और मिना और अरफात के टेंटों के अंदर भी इस बात की बहुत ज्यादा फिक्र करनी चाहिए कि खवातीन को एक तरफ रखा जाए, मर्द हज़रात दूसरी तरफ रहें, बेपर्दगी से जितना हो सके अपने आप को बचाएं, और अगर कोई शक्ल न बन सके तो आखिर में अपने आप को समझाएं कि तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, तुम्हारे दिल में भी कोई बुरे ख्यालात नहीं आने चाहिए, तुम्हारी निगाह भी किसी गलत अंदाज में नहीं उठनी चाहिए, और बार बार अपने आप को समझाएं ये अल्लाह की बंदी, मेरी दीन की बहन, मैं इसका भाई हूं, और अगर मेरे दिल में बुरे ख्यालात आए, इसको मालूम हो या ना हो, लेकिन अल्लाह मुझे देख रहे हैं। ये कैफियत तवाफ में भी रहनी चाहिए, हरम जाते और वापस आते हुए भी, होटलों में भी, दुकानों पर भी, हर जगह यही कैफियत रहनी चाहिए। जितनी ज्यादा ये कैफियत रहेगी उतने आप अपने दिल को बुरे ख्यालात से और निगाहों को गलत देखने से बचा सकेंगे। अपने कमरे के साथियों के साथ इतना अच्छा सलूक करें, किचन में, बाथरूम में इतना ज्यादा वक्त खर्च न करें कि दूसरों को तकलीफ हो। इसी तरह से बाथरूमों में कभी लाइन लगती है और कभी कोई आदमी बाथरूम में अंदर चला जाता है और गैर जरूरी तौर पर ज्यादा वक्त खर्च करता है, वहां इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि ऐसा न हो बाहर जो खड़े इंतजार में हैं मेरी वजह से उनकी नमाजें छूट जाएं, मेरी वजह से उनकी नमाज का नुकसान हो जाए। इसलिए बाथरूम में कम से कम वक्त खर्च करें, पानी कम से कम खर्च करें। इसी तरह से बाथरूम को पाक साफ रखने की कोशिश करें, उसको गंदा और नापाक न किया जाए, और जहां बहुत ज्यादा लोग खड़े लाइन में हों वहां कोशिश करें कि दूसरों को अपने ऊपर तरजीह दें और दूसरों को जरूरत के मुताबिक पहले उनको अपनी जरूरत पूरी करने दें। खवातीन अगर साथ हों तो खवातीन को साथ अपने साथ साथ रखें। खास तौर पर तवाफ में मर्द, अजनबी मर्दों के ऐसे जमगट्ठे में जाकर के तवाफ करना जिससे बेपर्दगी हो और बदन दूसरों के साथ टच कर जाए, उससे अपने आप को जितना बचा सकेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। वहां का मौसम चूंकि हमारे मौसम से मुख्तलिफ है, इसलिए बाज दफा वहां जाकर के तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरत की दवाएं, खास तौर पर फर्स्ट एड किस्म की जो दवाइयां होती हैं, उन दवाइयों का एक अच्छा खासा जखीरा यहाँ से साथ लेकर के जाएं। मैदे के लिए, खाने पीने के लिए, जुकाम नजले के लिए, बदन के उमूमी दर्द के लिए, इसी तरह से बुखार के लिए खास तौर पर विटामिन सी जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके उतना ज्यादा बेहतर रहता है। लिहाजा वहां पहुंच करके बजाय इसके कि हम अस्पतालों में घूमते रहें, यहां से ली हुई दवाई एक तो सस्ती भी पड़ती है और दूसरी जब दवाई साथ साथ रहती है तो उसका फायदा भी होता है। जिन हजरात को चश्मा पहनने की इजाजत है उनके लिए बेहतर है कि चश्मे के एक दो पीस और साथ ले लें। खुदा न खास्ता अगर चश्मा एक ही साथ हुआ और वो कहीं टूट गया या गिर गया, उसके बाद फिर आदमी परेशान हो जाता है और वहां दूसरा चश्मा बनाने में कभी कभी दिक्कतें आती हैं। उन दुकानों को ढूंढना, वहां नए सिरे से टेस्ट कराना, उस पर कभी खर्चे ज्यादा होते हैं। इसलिए 2-3 पीस और साथ लेने चाहिए ताकि जरूरत के वक्त उनसे फायदा उठाया जा सके। यहां से सामान में सबसे पहले तो एहराम की चादरें हैं। एहराम हर किस्म का इस्तेमाल करना जायज है, रंग की भी कोई तायीन नहीं है, मगर सबसे अफजल सफेद रंग का एहराम है। सफेद रंग का एहराम पतले कपड़े का भी हो सकता है और तौलिए साइज का भी हो सकता है। ज्यादा मुनासिब यह है कि टॉवेल साइज का जो एहराम होता है वो वाला एहराम ले लिया जाए। तो पतले कपड़े का एहराम जायज तो है, मगर कभी कभार उसमें बेपर्दगी हो जाती है। खास तौर पर जब आदमी ने इस्तिंजा तहारत की हो तो पानी के छींटे उस हिस्से पर पड़ जाते हैं कि जब आदमी रुकू सजदा करता है तो दूसरे को निगाह उस हिस्से पर पड़ जाती है जहां वो कपड़ा भीगा होने की वजह से बदन से चिपक जाता है और बेपर्दगी होती है। इसलिए टॉवेल साइज का एहराम अगर इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। उसमें वहां की गर्मी से भी आदमी महफूज रहता है,
पसीना अगर निकल रहा हो तवाफ के दौरान खास तौर पर, तो टॉवेल साइज का एहराम जो है वो उस पसीने को जज्ब भी कर लेता है, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि टॉवेल साइज का एहराम लिया जाए। एक एहराम मजीद अपने साथ रख लिया जाए ताकि अगर खुदा न खास्ता इस्तेमाल होने वाला एहराम नापाक हो गया हो या फट गया हो तो आदमी बिला तकल्लुफ दूसरा एहराम इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान को दूसरा न हो, यही वाला एहराम अगर खुदा न खास्ता नापाक हो जाए, उसको पाक कर सकते हैं और पाक करके फिर दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हरम शरीफ में चूंकि सारी दुनिया के मुसलमान पहुंचते हैं, इसलिए वहां बार बार ये परेशानी आती है कि जूते गुम हो जाते हैं। इसलिए पहला मशवरा यह है कि सस्ती से सस्ती चप्पलें 2-4 जोड़े यहीं से साथ ले लें और चप्पल को अपने साथ महफूज रखने के लिए थैलियां भी साथ रख लें। जब आप अपने डेरे से हरम शरीफ के लिए चलें, चाहे मक्का मुकर्रमा में चाहे मदीना तैयबा में, तो अपनी चप्पल अपने थैले में डाल लें और उसके बाद फिर जहां आपको नमाज पढ़नी हो अपनी चप्पल अपने साथ रख लें। बल्कि तवाफ में अपनी चप्पल अपने जेब में भी रख सकते हैं, अपने कंधे पर भी लटका सकते हैं और अपने पीछे भी बांध सकते हैं, अपने कमर पर भी बांध करके चल सकते हैं, हत्ता कि अपने एहराम की चादर में भी यहाँ दबा करके वो चप्पल रख सकते हैं। वो चप्पलें नापाक नहीं होती हैं, इसलिए कि नापाकी बाथरूम में तो कमोड़ के अंदर गिर जाती है और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो चप्पल चूंकि पानी से भीग करके निकलती है, इसलिए वो चप्पल नापाक नहीं होती। और मक्का मुकर्रमा या मदीना तैयबा के सड़कों पर कोई नापाकी नहीं है, इसलिए वो चप्पल आपकी पाक रहेगी। आम तौर पर वो पाक ही होती है, इल्ला माशाल्लाह अगर कभी नापाक होने का खदशा हो तो उसको पाक करके अपने साथ रखा करें और जहां आप रहें वहां अपनी चप्पल अपने साथ साथ रखें। खुदा न खास्ता अगर आपने चप्पल कहीं किसी अलमारी में रख दी है और वहां आपकी चप्पल गुम हो गई है तो खबरदार किसी दूसरे इंसान की चप्पल हरगिज मत उठाएं। अगर किसी इंसान ने आपकी चप्पल उठाकर आपको तकलीफ पहुंचाई है जानबूझकर या बेइरादी तौर पर, लेकिन इसके माना यह नहीं कि अब हम किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाएं। नंगे पांव चलना बेहतर है बमुकाबले इसके कि हमारे जरिए से किसी दूसरे हाजी को तकलीफ पहुंचे। जब चंद जोड़े सस्ती चप्पलें आप यहाँ से लेकर के जाएंगे तो अगर आपकी चप्पलें गुम हो गई तो आप अपनी दूसरी चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर जितनी चप्पलें ले गए तो सारी खर्च हो गई, इस्तेमाल हो गई और गुम हो गई, तो वहां सस्ती से सस्ती चप्पलें जो वहां मिलती हैं वो खरीद करके वो इस्तेमाल कर लें। तजर्बे की एक बात यह भी अर्ज की जाती है कि चूंकि आदमी को शौक होता है ज्यादा से ज्यादा तवाफ करें, और तवाफ यानी मताफ जहां तवाफ किया जाता है वो चूंकि संगे मरमर का है और आदमी को सख्त पत्थर पर चलने की आदत नहीं होती, इसलिए 1-2 तवाफ किए तो पांव में दर्द होने लगता है। और जब बाहर निकलता है तो सारा हरम और हरम के बाहर का सारा हिस्सा चूंकि संगे मरमर का ही है, इसे संगे मरमर पर चलते चलते आदमी के एड़ियों में दर्द होता है। लिहाजा बहुत बेहतर है कि आदमी मोटे किस्म के मोजे साथ ले जाए ताकि तवाफ के दौरान उन मोटे किस्म के मोजों में और इसी तरह से सही में उन मोजों में, लेकिन ये याद रहे कि ये मोटे किस्म के मोजे उस तवाफ में इस्तेमाल करेंगे जो तवाफ आपका आम हालात का तवाफ होगा। जब आप एहराम की हालत में होंगे उस वक्त वो मोटे किस्म के मोजे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, खवातीन को उसमें भी इजाजत है, इसलिए अगर आपके साथ खवातीन हो तो उनको मोटे मोजे, ऐसे मोजे जिसमें अंदर अच्छा कपड़ा बिछा हुआ हो, और बाद दफा वहां मोजे मिलते भी इसी किस्म के हैं जिनके अंदर फोम लगा हुआ होता है, उसकी वजह से तवाफ करने में बड़ी आसानी होती है। तो वो तवाफ जो आप एहराम की हालत में कर रहे हैं उस तवाफ में तो वो मोजे नहीं पहन सकते, लेकिन इसके अलावा जब आप कसरत से तवाफ करना चाहेंगे और पाँव में दर्द होने का खदशा हो तो वो मोजे या वो पापोश इस्तेमाल कर लें जिसमें अंदर से फोम लगा हुआ हो ताकि आपके पाँव में दर्द न हो। हरम शरीफ में खुसूसन हरम मक्का में यानी खाने काबा में क्योंकि मर्द और औरतें एक साथ अंदर दाखिल होते हैं, तो अंदर जाते हुए बाहर निकलते हुए औरतों के साथ चलना होता है, तो बाज दफा बेख्तियारी तौर पर किसी नामहरम औरत के साथ कभी कंधे लग जाते हैं, कभी बदन से बस कर जाता है। उस वक्त अपने दिल को बुरे ख्यालों से बचाएं। वो एक मुश्किल मरहला होता है जहां एक तरफ से बदन के साथ लग गया, दूसरी तरफ से शैतान दिल में बुरे ख्याल डाल सकता है। उस वक्त अपने आप को समझाएं कि जैसे तुम्हारा जिस्म तुम्हारी हकीकी माँ के साथ टच कर जाए या तुम्हारी हकीकी बहन या बेटी के साथ टच कर जाए, उस वक्त तुम्हारे दिल में बुरे ख्याल नहीं आते। इसी तरह से इस नामहरम औरत के साथ अगर गैर इरादी तौर पर मेरा बदन मस कर गया तो मुझे अपने दिल को बुरे ख्याल से बचाना है, और अगर दिल में बुरे ख्याल आए तो फौरन जुबान से ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें ताकि उस बुरे ख्याल के गलत असरात से आप अपने आप को बचा सकें।
तवाफ में बकसरत ऐसा होता है कि मर्दों और औरतों का जमघटा होता है और मर्द और औरत के बदन के साथ बदन मस कर जाता है। उस वक्त अपने आप को जितना बचा सकते हो बचाएं। अगर किसी औरत के जरिए से आपको धक्का लग गया, आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं, मगर हम कोशिश करेंगे कि हमारा जिस्म किसी नामहरम के साथ मस न करने पाए। और ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा सख्त भीड़ हो और लोग भींचे जा रहे हों, वहां तवाफ करने से, खास तौर पर उस वक्त जबकि वहां खवातीन हो, तवाफ करने से परहेज करें। हरम शरीफ में नमाज के दौरान कभी ऐसा होता है कि कोई नामहरम औरत दाएं तरफ या बाएं तरफ सफ में खड़ी हो गई, या ठीक सामने वाली सफ में, सामने जहां हमें सजदा करना है वहां हमारे सामने मुकाबिल में कोई खातून है। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ गई तो आपके लिए बेहतर, आपके लिए जरूरी है कि आप वहां से फौरन हट जाएं और हट करके किसी ऐसी जगह पर नमाज पढ़ें जहां दाएं और बाएं खातून न हो बल्कि कोई मर्द हो, और ठीक आपके सामने भी कोई खातून न हो बल्कि मर्द हो। अगर खुदा न खास्ता अगर आपके दाएं या आपके बाएं कोई खातून हुई या आपके ठीक सामने खातून हुई तो आपकी नमाज अदा नहीं होगी, इसलिए कि खवातीन के लिए हदीस में हुक्म दिया गया कि वो पिछले सफों में खड़े होकर के नमाज पढ़ें। तो अब वहां चूंकि हुजूम होता है और वहां पुलिस भी फेल हो जाती है खवातीन को कंट्रोल करने में, खुसूसन हज के उन दिनों में जब बहुत ज्यादा रश हो जाता है, तो उस वक्त आप ये तो कर नहीं सकते हैं कि किसी खातून को सबसे निकाल दें, उसको निकालना मुश्किल है। हाँ, अपनी नमाज बचाने के लिए आप वहां से हट सकते हैं और हटकर किसी ऐसी जगह पर नमाज पढ़ें जहां खातून न दाएं तरफ हो, न बाएं तरफ हो और न सामने हो। हरम शरीफ में बाज दफा नमाज पढ़ने वालों को एक अजीब गलती होती है, वो ये कि हरम शरीफ की सीढ़ियों में या हरम शरीफ के बाहर के सहनों में जब लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कभी कभी उनका रुख खाने काबा की तरफ रहता ही नहीं है। वो समझते तो ये है कि हमारा रुख खाने काबा की तरफ है, मगर दरअसल उनका रुख खाने काबा की तरफ नहीं बल्कि खाने काबा के अलावा किसी और रुख की तरफ होता है। और वहां सफों की तरतीब ऐसी बनती है कि आदमी कभी मुड़ भी नहीं पाता है। इसलिए इस तरफ ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर कहीं सीढ़ियों में नमाज पढ़ रहे हैं या छत्तियों पर नमाज पढ़ रहे हैं या हरम शरीफ के बाहर के सहनों पर खड़े नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका रुख खाने काबा ही की तरफ रहना चाहिए। हरम शरीफ की नमाज के दौरान एक कोताही ये भी होती है, क्योंकि हरम शरीफ में बहुत दूर दूर तक माइक लगे हुए हैं, तो बेशुमार हाजी साहिबान अपने होटलों के बाहर सफे बना लेते हैं, हालांकि वहां से लेकर के हरम तक बहुत सारा फासला खाली होता है। इसी तरह से बहुत सारे हाजी साहिबान सहन में खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, हालांकि अंदर हरम में काफी जगह मौजूद होती है। इससे परहेज करें। अंदर अगर जगह मौजूद है तो अंदर जाने की कोशिश करें। सहन में अगर आगे की सफें खाली है तो अगली सफों में बैठें। दूर बैठ करके नमाज पढ़ना हरगिज बेहतर नहीं है, खास तौर पर वो हाजी साहिबान जो अपने होटलों में ही रह करके नमाज पढ़ते हैं, ये सोचकर कि आवाज तो यहाँ आ ही रही है, अगर सफें यहाँ से हरम शरीफ तक मुत्तसिल नहीं है तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। याद रखें, इस तरह से नमाज अदा नहीं होती। अगर आपकी सफें हरम शरीफ तक मुत्तसिल नहीं है और दरमियान में गुजरने वाले गुजर रहे हैं और आप दूर कहीं सफों में खड़े हैं तो आपकी नमाज अदा नहीं होगी। सिर्फ हरम शरीफ की आवाज के साथ आपका कनेक्शन है, हरम शरीफ के साथ आपका फिजिकल कनेक्शन नहीं है, और वो जब सफेद तरतीब के साथ काबे तक रहती हैं तब आपका ताल्लुक काबे के साथ कायम हो जाएगा। इस तरह की गलती से बचें। इसके नतीजे में बहुत सारे हाजी साहिबान की नमाजें ही बर्बाद होती हैं और वो समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारी नमाजें बर्बाद हो रही है। मक्का मुकर्रमा के क़याम के दौरान बहुत सारे हाजी साहिबान सुस्ती की वजह से अपनी बिल्डिंगों में रहते हैं, बल्कि बाज दफा तो हरम शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जाते, अपने बिल्डिंगों में नमाज पढ़ते हैं। और वो नमाज भी इतनी बेदिली के साथ होती है, जैसी बेदिली के साथ यहाँ अपने घरों में, उससे ज्यादा बेदिली के साथ वहां नमाज पढ़ते हैं। इससे ज्यादा महरूमी और क्या होगी। एक आदमी मक्का मुकर्रमा की सरजमीन में, जिस काबे के अंदर एक नमाज पढ़ने पर 1 लाख नमाजों का सवाब है, उस काबे में रहने के बावजूद आदमी वहां हाजिर नहीं होता है। आखिर और क्या काम करने के लिए हम वहां गए हैं। इसलिए बुढ़ापा हो, बीमारी हो, सुस्ती हो, गफलत हो, इन तमाम चीजों को बर्दाश्त करके हरम शरीफ में ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। एक नमाज भी हरम के बाहर नहीं। हाँ, वो लोग कि जो हरम शरीफ से दूर जिनका कयाम है, मसलन अजीजिया में है और वह हरम अगर नहीं पहुंच पाए तो अजीजिया के करीब के मस्जिद में वह नमाजें अदा कर सकते हैं। लेकिन वो भी अगर